Hi everyone, hope you liked the previous video. Today we'll discuss with the new chapter, that is biomolecules. Biomolecule is the most important chapter because many topic is based on this chapter. So let's start with the biomolecules. So what is biomolecules? Biomolecules are the molecules which is essential in life activities. Bio means life, and the molecules which are essential in life activity is called as biomolecules. So biomolecules are divided into two types, that is micromolecules and the macromolecules. Micromolecules are the molecules having low molecular weight and have higher solubility. These includes minerals, water, amino acids, sugar, nucleotides. So micro means small. The micromolecules are the small molecules which is having low molecular weight, less than 1000 Dalton. So these molecules are called as micromolecules, and the examples are water, amino acids, sugar, and nucleotides, because the molecular weight of all these is below 1000 Dalton. And macromolecules are the molecules these are which are polymerized प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स मींस क्या होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं दे आर इंटरलिंक विथ ईच अदर बहुत सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होने लगते हैं सो क्या हो जाता है पॉलीमराइजेशन होने लगता है उनका और जब पॉलीमराइजेशन होगा तो ऑब्वियस है कि उसकी जो मॉलिक्यूलर साइज है वो बढ़ेगी सो दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मैक्रोमोलिक्यूल इज हाई एंड आल्सो they have a low solubility, and these includes polysaccharide, protein, and nucleic acids. So these are the two types of biomolecules. और कुछ important terms है जैसे elements. So elements क्या होते हैं? On the basis of on the basis of either they are metal or non-metal, they are divided into metallic and non-metallic elements. And on the basis of presence and requirement in the plants and animals, they are grouped into major and minor bioelements. So on the basis of function, there are following types, that is three types of elements are there on the basis of their function. So framework element, protoplasmic element, and balancing element. So what is framework element? Framework elements are the elements which is important for the formation of framework of the cells, and these are carbon, oxygen, and hydrogen. The protoplasmic elements are the element which includes protein, nucleic acid, lipid, chlorophyll, and enzyme, and these all is important for formation of protoplasm, or which all these are present in the protoplasm of the cell, and that's why these elements are called as protoplasmic element. वैसे थर्ड एलिमेंट जो होता है वो बैलेंसिंग एलिमेंट होता है, और बैलेंसिंग एलिमेंट क्या करता है, काउंटरैक्ट द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ अदर मिनरल्स. जो अदर मिनरल्स होते हैं तो उनका टॉक्सिक इफेक्ट जो है उसको काउंटरैक्ट करने का काम करता है by ion balancing, and that's why these elements are called as balancing element. There are total 17 essential elements present in the plants and 24 in the animals, and 14 elements are non-essential elements. So this is about the elements कि elements होते क्या है, और वो on the basis of presence or absence, on the basis of their function, on the basis of the requirement, these are the few types of elements. अभी ये elements का proportion कितना होता है सेल में, एक सेल में यदि हम इसका proportion निकालें तो सबसे मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट जो होता है सेल में दैट विल बी अ ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन इज 62%. कितना होता है 62%, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट. उसके बाद सेकंड जो होता है वो होता है कार्बन, दैट इज 20%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2.5%, फास्फोरस 1.14%, एंड आयरन 1.1%. उसी तरह से कुछ और एलिमेंट जो है वो सेल में पाए जाते हैं, जैसे क्लोरीन है, सल्फर है, आयोडीन है, पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है. दिस ऑल एलिमेंट्स is present in the cell, but it is present in the negligible amount, and that's why these elements are also called as trace elements, because trace means क्या, small, बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले elements. So these are called as trace element. So next thing, biological compound. अभी हमें पता है कि हमारी जो सेल होती है it is made up of some compounds like ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इसीलिए हमने क्या किया है, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया है इनटू टू टाइप्स, दैट इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड. सेल बेसिकली मेड अप ऑफ टू कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक क्या होता है, दैट इज जिसमें कार्बन एब्सेंट होता है, so उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक. सो कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ कार्बन.
सिंपल स्ट्रक्चर होता है विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। कार्बन नहीं है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो लो हो जाएगा। सो एग्जांपल इज वाटर, मिनरल, आयरन एंड गैसेस। सो आउट ऑफ टोटल compound present in the cell, that is 100%, inorganic accounts for 80 to 83%। मतलब इनऑर्गेनिक कंटेंट कितना होता है सेल में? 80 to 83। तो जो मेजोरिटी ऑफ पार्ट है सेल का वो किस चीज से बना है? हमारा इनऑर्गेनिक कंटेंट से। और उसमें भी इनऑर्गेनिक कंटेंट में जो मेजर पार्ट है या मेजर कंपाउंड है वो कौन सा है? वाटर। क्योंकि हमें पता है कि जो सेल होती है तो वो 70 to 80% ऑफ वाटर से बनती है। सो दैट्स व्हाई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो मेजर पार्ट होते हैं सेल में, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो भी उतने ही इसेंशियल होते हैं। एंड व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड? हमें पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज कार्बन केमिस्ट्री। मतलब क्या? जिसमें कार्बन की स्टडी होती है उसको कार्बन केमिस्ट्री बोलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जिन कंपाउंड्स में कार्बन का प्रेजेंस होता है, मींस द कार्बन इज प्रेजेंट in the compounds, so these are called as organic compounds। and organic compounds, और ये organic compounds जो होते हैं they include protein, carbohydrate, lipid, nucleotides and other compounds। उसमें जो मैंने अभी आपको बताया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो करीब करीब 80% होते हैं, तो बाकी 20% जो होता है वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें 20% में सबसे मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन क्यों होता है? क्योंकि 12% जो प्रोटीन होता है इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्या है बिल्डिंग ब्लॉक? मतलब क्या? वो आपकी लाइफ को बनाता है, जो आपकी लाइफ है उसको वो बनाने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई प्रोटीन ये मोस्ट अबंडेंट होता है, इट इज 12%। उसके पीछे लिपिड्स होते हैं क्योंकि वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं, वो थर्मोरेगुलेटिंग पावर भी उनमें होती है। तो और तीसरा जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड, जैसे डीएनए आरएनए, हर एक सेल के लिए डीएनए आरएनए लगता है। फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट जो होता है तो वो आपको एक इंस्टेंट एनर्जी देता है। यदि आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे तो आप किसी भी तरह का वर्क जो है वो नहीं कर पाओगे। एंड अदर कंपाउंड्स आर देयर। सो दिस इज डिवीजन ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। एंड ये सारे जो तीनों टॉपिक्स थे, दैट इज व्हाट इज मीन बाय बायोमोलिक्यूल्स, व्हाट इज मीन बाय एलिमेंट्स, बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, दिस इज अ इंट्रोडक्शन फॉर दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द मेन कंटेंट की मेन कंटेंट क्या है इस चैप्टर का। सो कंटेंट में सबसे पहले हम देखेंगे दिस चैप्टर कवर following topics like carbohydrate, protein, lipids, nucleic acid, enzyme and vitamins, and these all are the biomolecules। So let's start with the carbohydrates। So what is meant by carbohydrate? यदि हम कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? So hydrates of carbon is called as carbohydrates। अभी आप पूछेगा hydrates of carbohydrate क्या hydrates of carbon क्या होता है? So जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों एक रेशियो में जब पाए जाते हैं तो उसको हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन बोल सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज कार्बोहाइड्रेट्स। अभी कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? आप रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हो या खाते हो। जैसे कि आप शक्कर खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप फ्रूट्स खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप गेहूं खाते हो, उसमें मतलब रोटी खाते हो, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आप कोई भी चीज यदि कंज्यूम करते हो तो उस हर एक फूड में आपको कार्बोहाइड्रेट जो है वो पाया जाए। सो कार्बोहाइड्रेट्स आर वन ऑफ द 3 मेजर क्लासेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जो 3 मेजर क्लासेस है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के, तो उसमें से कार्बोहाइड्रेट इज वन ऑफ द मेजर क्लास ऑफ 3 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर आल्सो मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। क्यों कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है? क्योंकि वी नो एवरी प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। हमें पता है ना कि सब प्लांट्स होते हैं तो वो सारे फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो बनाते क्या है? कुछ तो बनाते होंगे। तो प्रोटीन तो नहीं बनाते, तो क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। प्लांट्स में तो लिपिड्स होते ही नहीं है, तो वो बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट कौन से फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है या स्टार्च के फॉर्म में बनता है? मतलब स्टार्च के फॉर्म में उसमें वो स्टोर किया जाता है। सो जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है प्लांट्स में वो कौन सी होती है? स्टार्च होती है। और एनिमल्स में कौन सी होती है? वो ग्लाइकोजन होती है। तो ये चीज याद रखना कि स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द प्लांट इज स्टार्च एंड स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द एनिमल इज glycogen। So the general formula of carbohydrate is CnH2nOn। CnH2nOn का मतलब क्या? यदि एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और एक ऑक्सीजन होगा। और इस तरह से जो जनरल फॉर्मूला होगा वो कार्बोहाइड्रेट का होगा CnH2nOn। So what are the functions of carbohydrates? Carbohydrates are important for a variety of functions।
But some important functions I have enlisted, that is it is energy storage. It gives instant energy. वो आपकी जितनी भी एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज होती है, उसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है. सो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या करता है, आपको एनर्जी स्टोर करने का भी काम करता है और एनर्जी प्रोवाइड करने का भी काम करता है. इट एक्ट्स एज एन फ्यूल. किस तरह से फ्यूल एक्ट करता है? जिस तरह से आपकी बाइक में यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपकी बाइक नहीं चलेगी, उसी तरह से ये हमारे बॉडी में यदि कार्बोहाइड्रेट्स खत्म हो जाएंगे तो आपकी बॉडी भी नहीं चलेगी. तो दैट्स व्हाई इट एक्ट्स एज एन फ्यूल. तो आप जब भी कभी भी घर से बाहर से जब घर पे आते हो और कुछ काम करके आते हो या खेल के आते हो, तो आपको सबसे पहली चीज जो ऑफर की जाती है घर में वो होती है या इधर वो टी होगी, इधर ये शरबत होगा या फिर कोई फ्रूट जूस होगा, जिससे कि आपको इंस्टेंटली कुछ कार्बोहाइड्रेट्स मिले और कार्बोहाइड्रेट्स मिलने के बाद वो उसकी एनर्जी प्रोडक्शन करे और वो एनर्जी जो प्रोड्यूस हुई है वो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करे. And these carbohydrates are also important for some metabolic intermediates. So these are some functions. और कुछ functions होते हैं जैसे structural support के लिए होते हैं या structural formations के लिए होते हैं, structure बनाने के लिए होते हैं. So carbohydrates are important for important components of the nucleotide. जैसे DNA और RNA होते हैं, तो DNA और RNA में जो शुगर होती है या शुगर मॉइटी होती है, इट इज राइबोस शुगर. सो जो राइबोस शुगर होती है ये क्या है? शुगर है, मतलब कार्बोहाइड्रेट है. सो दैट्स व्हाई डीएनए और आरएनए कैसे बनेगा? जब आपके पास शुगर होगी तभी आपका डीएनए और आरएनए बनेगा, वरना आपका डीएनए या आरएनए नहीं बनेगा. प्लांट में और बैक्टीरियल सेल वॉल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं. अभी प्लांट और बैक्टीरियल सेल वॉल में क्या होता है? प्लांट सेल वॉल में आपको पता है कि प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो सेल्यूलोज क्या है? शुगर, अगेन कार्बोहाइड्रेट. आपका बैक्टीरियल सेल वॉल क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन. पेप्टिडोग्लाइकन क्या है? अगेन कार्बोहाइड्रेट. सो आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में जो आर्थ्रोपोडन्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स वगैरह हो गए, तो उनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, बाहरी स्केलेटन जो होता है, तो वो भी किससे बनता है? कार्बोहाइड्रेट से बनता है. इट इज कॉल्ड एज काइटिन. सो दीज आर सम important functions of carbohydrate. Carbohydrates are carbon compounds that contains large quantity of hydroxy group. So hydroxy group के carbohydrates are chemically characterized as, on the basis of hydroxy group, they are characterized as polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones. What is polyhydroxyaldehyde? Sugar that contain an aldehyde group. ऐसी शुगर जिसमें aldehyde group हो. aldehyde group कौन सा है? आपको केमिस्ट्री में पता है, CHO is aldehyde group. So ये जो aldehyde group होगा, तो ये polyhydroxyaldehyde group जो होगा, तो जब aldehyde group आपके शुगर के साथ कंबाइन होगा तो उसको हम कौन सी शुगर बोलेंगे? aldehyde शुगर. और it is also called as aldose शुगर. कौन सी शुगर बोलेंगे? aldose शुगर. उसी तरह से यदि आपका फंक्शनल ग्रुप शुगर में C डबल बॉन्ड O होगा, दैट इज केटो ग्रुप. सही है? तो जो केटो ग्रुप यदि आपके शुगर के साथ कंबाइन होगा तो उस शुगर को हम क्या बोलेंगे? उस शुगर को हम बोलेंगे केटोस शुगर. कौन सी शुगर बोलेंगे? केटोस शुगर. सो मैंने आप यहाँ पे एक इमेज दिखाई है, तो उस इमेज में मैंने दोनों फंक्शनल ग्रुप दिखाए हैं, दैट इज अल्डिहाइड एंड केटोन. सो दैट इज carbohydrates are chemically characterized as polyhydroxyaldehydes and polyhydroxyketones. Next one is classification. अभी ये जो carbohydrates होते हैं, they are classified into different types of sugars. So first one is a monosaccharide and their derivatives, oligosaccharides, and third one is polysaccharide. So monosaccharides क्या होते हैं? Mono means single and saccharide means sugar. So ऐसे sugar जो उसका monosaccharide क्या है? Single sugar molecule is present in them. So that is called as monosaccharide. और वो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं छोटे कार्बोहाइड्रेट्स में या छोटे मॉलिक्यूल्स में, फिर से वो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं. सो उनको हम क्या बोलेंगे? मोनोसैकेराइड्स. मोनो मींस सिंगल एंड सैकेराइड मींस शुगर अगेन. सो मोनोसैकेराइड is again divided into monosaccharides and derivatives of monosaccharide. So we'll see what is monosaccharides and derivatives of monosaccharide. Then second one is an oligo. What is meant by oligo? Oligo means few. Saccharide means what? Sugar. So oligo का मतलब क्या होता है? Few. और saccharide का मतलब होता है sugar. So few sugar molecules are interlinked with each other. Few saccharide molecules are interlinked with each other, and these molecules are interlinked with the specific bond. एक specific bond से वो interlink होते हैं और उस specific bond को बोला जाता है glycosidic bond और glycosidic linkage. तो जब दो एक
ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जब बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ऐसे फ्यू मतलब 2 से लेके 10 मॉलिक्यूल्स तक यदि मोनोमर्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड है तो उनको हम क्या बोलेंगे, ऑलिगोसैकेराइड। ऑलिगोसैकेराइड इज डिवाइडेड इनटू डाइसैकेराइड्स एंड ट्राइसैकेराइड। अभी डाइसैकेराइड्स क्या है, डाई मींस 2 and saccharide means sugars, so 2 molecules are interlinked with each other, so these are called as disaccharides. Again glycosidic bond will be there, and if 3 molecules, 3 monomers are interlinked with each other, so that is called as trisaccharide. So this will be with the oligosaccharide. Then the polysaccharide. What is meant by polysaccharide? Poly means many, saccharide means sugar. So many sugar molecules or many monomers are interlinked with each other with the help of again glycosidic bond, and these are called as a polysaccharide. Polysaccharide is divided into homopolysaccharides and heteropolysaccharides. So homopolysaccharide क्या है? Homo means same and polysaccharide means the many sugar molecules. तो सारे सेम शुगर मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स होने चाहिए, जैसे ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, मेनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर एंड दे फॉर्म होमोपॉलीसैकेराइड. हेटेरो क्या है? हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉलीसैकेराइड मतलब अगेन मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स, तो डिफरेंट पॉलीसैकेराइड डिफरेंट मोनोमर्स आर लिंक्ड विद ईच अदर. तो क्या होगा, ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज ग्लूकोज फ्रुक्टोज, इस तरह की एक चेन बनेगी मेनी मॉलिक्यूल्स की, मोनोमर्स की, और उसके बाद ये हेटेरोपॉलीसैकेराइड होगा. या फिर ऐसे भी हो सकता है कि 2 से ज्यादा मोनोमर्स, अलग अलग मोनोमर्स जो है वो इंटरलिंक्ड होंगे, जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज, और इस तरह से ये चेन जो है वो लंबी होती जाएगी. सो दैट विल कॉल्ड एज एन हेटेरोमोनोसैकेराइड इज डिवाइडेड इनटू मोनोसैकेराइड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स. सो मोनोसैकेराइड्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स. मतलब क्या? तो उसमें कितने नंबर्स ऑफ कार्बन है एक शुगर मॉलिक्यूल में. जैसे हमें पता है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला C6H12O6 है. तो C6H12O6 में कितने कार्बन है? 6 कार्बन. मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन, सो 6 कार्बन है, तो इस शुगर को क्या बोला जाएगा, वो मोनोसैकेराइड में आएगी. लेकिन मोनोसैकेराइड में इस शुगर को क्या बोला जाएगा, इस शुगर को बोला जाएगा हेक्सोस शुगर, क्योंकि इसमें 6 कार्बन है. उसी तरह से मोनोसैकेराइड डिवाइड होता है ट्रायोस, मतलब 3 कार्बन जिस मोनोमर पे प्रेजेंट होंगे उसको ट्रायस बोलेंगे. टेट्रोज मतलब जिसमें 4 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको टेट्रोज बोलेंगे. पेंटोज जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होंगे उसको पेंटोज बोलेंगे. और यदि उसमें 6 कार्बन है तो उसको हेक्सोस बोलेंगे. 7 कार्बन है तो हेप्टोज बोलेंगे. 8 है तो ऑक्टोज बोलेंगे, एंड सो ऑन. सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन, मतलब कार्बोहाइड्रेट किस किस में क्लासिफाई होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द briefly in with monosaccharides. So what is monosaccharide? अभी हमने बात की सिंगल शुगर मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते हैं into smaller carbohydrates. So this is called as monosaccharide. General formula of monosaccharide is CnH2nOn. Example triose, that is 3 कार्बन कंपाउंड. मतलब क्या, जिसमें 3 कार्बन होंगे. So इसका क्या एग्जांपल है, ग्लिसरल्डिहाइड जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इट इज कार्बोहाइड्रेट. डाइहाइड्रोएसीटोन, इट इज कार्बोहाइड्रेट. और ये दोनों शुगर जो है वो एग्जांपल है, जैसे हमने पढ़ा पॉलीहाइड्रोक्सीकेटोन एंड पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड. तो ग्लिसरल्डिहाइड, अल्डिहाइड आया ना, तो ये एग्जांपल किसका हुआ फिर, पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड का, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्डिहाइड है. सो दैट इज अ ट्रायोस शुगर. एंड डाइहाइड्रोएसीटोन, एसीटोन क्या है, केटोन है, तो ये किसका एग्जांपल हुआ, केटो शुगर का एग्जांपल हुआ. तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मोनोसैकेराइड. उसी तरह से यदि हम मोनोसैकेराइड्स के और एग्जांपल्स के बारे में बात करें, जैसे ट्रायोस शुगर के बारे में बात किया, उसी तरह से टेट्रोज होती है जिसमें 4 कार्बन पाए जाते हैं. तो टेट्रोज का एग्जांपल हम ले सकते हैं इरिथ्रोज जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है. उसी तरह से पेंटोज का एग्जांपल जो है वो हम ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि राइबोस शुगर. राइबोस शुगर क्या है, 5 कार्बन शुगर है, तो दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ. राइबोस शुगर क्या है, 5 कार्बन कंपाउंड है, तो दैट विल बी एग्जांपल ऑफ पेंटोज शुगर. हेक्सोस का मैंने आपको बताया, दैट इज योर ग्लूकोज will be the example of hexose sugar. Fructose will be the example of hexose sugar. Galactose will be the example of hexose sugar. Mannose will be the example of hexose sugar. So these are the some examples of tetrose, pentose, hexose, and एक हेप्टोज शुगर भी होती है. So हेप्टोज शुगर का जो एग्जांपल है वो सिडोहेप्टिलोज जो है, that will be the example of हेप्टोज शुगर.
So about 70 monosaccharides are known, out of which only 20 are present in plants and animals. So this is structure of monosaccharide. तो एक स्ट्रक्चर दिया है एंड दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ हेक्सो शुगर. तो हेक्सो शुगर में क्या है, 6 कार्बन जो है वो पाए जाते हैं. कितने पाए जाते हैं? 6 कार्बन पाए जाते हैं. तो ये जो 6 कार्बन होते हैं, तो ये 6 कार्बन क्या किया 6 कार्बन क्या होते हैं? ये 6 कार्बन दो स्ट्रक्चर मैंने दिखाया है, एक चेन स्ट्रक्चर दिखाया है और दूसरा रिंग स्ट्रक्चर दिखाया है. तो ये 6 कार्बन जो होते हैं, ये 6 कार्बन इसमें पाए जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? हेक्सो शुगर बोला जाता है. तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6. तो देखिए 6 कार्बन यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी देखिए मैंने नंबर्स भी लिखे, C1 C2 C3 C4 and C5 and this one is last one C6. So total number of कार्बन यदि 6 होंगे तो वो हेक्सो शुगर कंसीडर होंगे एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड इट इज अ पायरानोस फॉर्म. कौन सा फॉर्म है ये? पायरानोस फॉर्म है या रिंग फॉर्म है. और ये जो लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर में दिख रहा है स्ट्रेट चेन में, तो वो जो है वो भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही है, लेकिन वो ओपन चेन में है, वो रिंग फॉर्म में नहीं है. उसी तरह से आपको राइट हैंड साइड में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है तो वो फ्रुक्टोज का है. देखिए अभी स्ट्रक्चर दो अलग अलग है, जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अलग है और फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन उनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है. क्यों सेम है? C6H12O6 फॉर ग्लूकोज, C6H12O6 फॉर फ्रुक्टोज आल्सो, लेकिन उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट है. सो दीज आर कॉल्ड एज आइसोमर्स. हम आइसोमर्स अगले स्लाइड में देखेंगे कि क्या होता है आइसोमर्स. सो सी यहाँ पे भी एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स. तो है 6, इधर भी 6, इधर भी 6, यहाँ इस साइड में भी आप देखोगे तो आपको 6 कार्बन ही मिलेंगे. सो दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज एंड रिंग फॉर्म और पायरानोस फॉर्म ऑफ फ्रुक्टोज. सो दिस इज अबाउट द मोनोसैकेराइड कि मोनोसैकेराइड जो है वो क्या होते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑलिगोसैकेराइड्स. ऑलिगोसैकेराइड्स क्या है? फॉर्म ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट. मतलब क्या होते हैं? 2 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जब एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड होते हैं या इंटरलिंक्ड होते हैं बाय अ स्पेशलाइज्ड बॉन्ड और ऑक्सीजन ब्रीच. सो दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड दैट ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जब फॉर्म होता है तो वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो एलिमिनेट होता है. और इस बॉन्ड के ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के दो टाइप्स होते हैं, दैट इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड द बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. सो oligosaccharide is again divided into disaccharide, that is I just said to you, di मतलब क्या है? 2, saccharide मतलब sugar. So दो मॉलिक्यूल सेम या डिफरेंट मॉलिक्यूल जब एक दूसरे के साथ कंडेंस्ड होंगे या इंटरलिंक्ड होंगे तो उसको क्या बोला जाएगा? डाइसैकेराइड बोला जाएगा, also called as double sugar. So इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो C12H22O11 होगा. So that will be with the डाइसैकेराइड. डाइसैकेराइड का यदि हमको एग्जांपल लेना है तो आपको जो ऊपर दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज. देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो दोनों सेम मॉलिक्यूल्स है एंड दे आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर. सो दैट इज अ सेम मॉलिक्यूल आर इंटरलिंकिंग विद ईच अदर और कंडेंस्ड विद ईच अदर. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डाइसैकेराइड. और यहाँ पे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, वो भी एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड या कंडेंस्ड हो रहे हैं, तो इसको, ये भी किसका एग्जांपल है? डाइसैकेराइड का, लैक्टोज. तो लैक्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज जब कंबाइन होते हैं सो दैट विल बी अ लैक्टोज. और जब ग्लूकोज और ग्लूकोज एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड या कंबाइन होते हैं सो दैट विल बी द माल्टोज. तो नेक्स्ट वन इज ट्राइसैकेराइड, दैट इज 3 sugar molecules are interlinked with each other. The general molecular formula is C18H32O16 and the examples are raffinose, gentianose is the example of trisaccharide. उसी तरह से tetrasaccharide क्या है? जिसमें 4 molecules are interlinked with each other, monomers are interlinked with each other, so that is called as a tetrasaccharide. Example is stachylose. Stachylose is found in Stachys tubifera and that's why the name is stachylose. So this is about the ओलिगोसैकेराइड की. ओलिगोसैकेराइड क्या है? इसमें एक चीज मुझे डिस्कस करनी है, दैट इज अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या होता है और बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें ये बता दिया जाता है कि अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, लेकिन कोई ये नहीं बताता है कि एग्जैक्टली अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसको बोलना चाहिए और बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड किसको बोलना चाहिए. तो अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड में क्या होता है? OH जब अबव द प्लेन होगा
फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल पे OH जब अबव द प्लेन होगा, यहाँ पे मतलब फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल पे OH जब अबव द प्लेन होगा तो वो बॉन्ड इस तरह से फॉर्म करेगा, क्रॉस बॉन्ड फॉर्म करेगा और क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। लेकिन OH जब बिलो द प्लेन होगा और वो नीचे आएगा, तो नीचे जब फर्स्ट वाला आएगा तो फोर्थ वाला इधर से नीचे रहेगा एंड दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट बॉन्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज एन अल्फा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो देखिए OH ग्लूकोज में क्या होता है कि OH जो होता है वो नीचे बिलो द प्लेन होता है, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, तो नीचे की तरफ OH जो है वो दिखाई देता है। तो इसीलिए ये जो बॉन्ड फॉर्म करता है वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म करता है विद द फोर्थ नंबर ऑफ कार्बन ऑफ अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो ये देखिए, जैसे ये जो है ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है। इसका फर्स्ट कार्बन इधर है, तो जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा ऑब्वियसली ये ग्लाइकोसाइडिक, ये अल्फा है क्योंकि बिलो द प्लेन है। लेकिन ये इसको पूरा नेमिंग करना है तो कैसे करेंगे? इट इज अल्फा 1,4 क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन, ये फोर्थ कार्बन और बॉन्ड किसके बीच में फॉर्म हो रहा है? फर्स्ट और फोर्थ कार्बन के बीच में फॉर्म हो रहा है एंड दैट्स व्हाई इट इज अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और लिंकेज। उसी तरह से देखो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जैसे लैक्टोज में दो अलग मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो दो अलग मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो रहे हैं तो गैलेक्टोज का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफर होता है ग्लूकोज से। कैसे डिफर होता है? तो उसका जो OH होता है वो अबव द प्लेन होता है, और OH जब अबव द प्लेन होता है इसका, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ देखिए ये जो है ये OH अबव द प्लेन है, और जब ये OH अबव द प्लेन होगा तो ये क्रॉस बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म करेगा, और जब ये ऑक्सीजन ब्रिज क्रॉस होता है तो उसको बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बोलेंगे। एंड अगेन दिस इज एन 1,4 बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि ये फोर्थ ग्लूकोज के फोर्थ मॉलिक्यूल के साथ गैलेक्टोज का फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, सो दैट विल बी 1,4 beta glycosidic bond. So that will be with the oligosaccharide and the glycosidic bond. Hope you understand this, what is alpha glycosidic bond and beta glycosidic bond. So next slide is for the polysaccharides. So polysaccharide क्या होते हैं? Many monomers are interlinked with each other. तो polymerization होगा, और polymerization होने के बाद बहुत सारे मोनोमर्स जो होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते जाएंगे, और इंटरलिंक होने के बाद एक लॉन्ग चेन तैयार होगी और उसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड इज हैविंग मोर देन 10 यूनिट्स टू few thousand units of monomers, so that is called as a polysaccharide। जैसे सेल्यूलोज जो होता है तो उसमें 6000 monomers एक चेन में पाए जा सकते हैं, so that will be a polysaccharide। Polysaccharides are divided on the basis of their structure into homopolysaccharides and heteropolysaccharides। So what is homopolysaccharide? These are made up by polymerization of single kind of monosaccharide, example starch, cellulose, glycogen। Heteropolysaccharide, these are made up by condensation of two or more kinds of monosaccharide, example glycosaminoglycans and peptidoglycans। So homopolysaccharide में क्या होगा? ग्लूकोज की चेन लिंक होगी, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, जैसे स्टार्च और सेल्यूलोज में होता है, कंटिन्यूअसली बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लिंक अप होते जाते हैं। लेकिन स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन तीनों में ग्लूकोज 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 की ही चेन होती है, लेकिन उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक में अल्फा 1,4 पाया जाता है, उसके बाद सेल्यूलोज में आपको अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 बॉन्ड मिलेगा, और ग्लाइकोजन में अल्फा बीटा 1,4 glycosidic bonds मिलेंगे। So that will be with the different bond present in the homopolysaccharide, that is starch, cellulose and glycogen। हेटेरोपॉलीसैकेराइड्स में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज गैलेक्टोज इस तरह की एक चेन मिलेगी, या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज फ्रुक्टोज इस तरह की एक चेन मिलेगी। सो डिफरेंट monomers are interlinked with each other or condensed with each other, so that is called as a heteropolysaccharides। So that's it with the classification of carbohydrates। one of the important topic is isomers। बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट्स को वही खत्म कर देते हैं क्लासिफिकेशन के साथ, बट nobody one tells you about the isomers कि isomers क्या होते हैं। वैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, लेकिन हम बायो केमिस्ट्री के isomers के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। So what is isomers? Isomers are the molecules that have the same molecular formula। Obviously मैंने अभी आपको बताया कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, जैसे C6H12O6 फ्रुक्टोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ग्लूकोज का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। लेकिन उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, और जब अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाएगी तो स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा। जैसे आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखा, वो आपको हेक्सागोनल रिंग में दिखा, लेकिन फ्रुक्टोज का जो
फॉर्मूला था वो आपको पेंटागोनल रिंग में दिखा, तो स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो गया। सो अरेंजमेंट जब डिफरेंट अरेंजमेंट होगी तो स्ट्रक्चर चेंज होगा। सो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, सो दैट इज कॉल्ड एज एन isomers. Examples: molecule with formula AB2C2 has two ways to it can be drawn. So isomer A, isomer 1, that is A, upper और साइड नीचे आपका B आ गया और दोनों साइड से आपका CC आ गया। दूसरा वे क्या होगा, A लेफ्ट में C, डाउन में C, अप में B और राइट में B। सो दैट विल बी द सेकंड आइसोमर्स। तो इस तरह से आप दो आइसोमर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस इज स्ट्रक्चरल आइसोमर 1 एंड द स्ट्रक्चरल आइसोमर 2। अभी आप इसमें देख सकते हो तो 4 आपको कार्बन मिल जाएंगे, 8 आपको हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो दोनों में जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो डिफरेंट है। सो दैट विल बी विद द आइसोमर्स। Then next one is an epimers. So what is epimers? Epimers are the sugars that differ in configuration at one position. वो क्या है? Epimers are the sugar that differ in configuration at one position. एक सिंगल पोजीशन पे जो होता है वो epimers जो होता है तो वो डिफर होता है। जैसे एग्जांपल से डी ग्लूकोज, डी गैलेक्टोज, डी ग्लूकोज, डी मैनोज, डी आइडोज, डी एल ग्लूकोज। तो ये epimers से एक दूसरे के, ग्लूकोज और गैलेक्टोज इज epimer, glucose and mannose is epimer at carbon 2 position and iodose and glucose at carbon 5 position। तो शायद आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली epimer क्या है, लेकिन इस स्लाइड में आपको ये दिख जाएगा कि एग्जैक्टली epimer क्या है। सो epimer में देखिए आप, जैसे डी ग्लूकोज जो है, सो डी ग्लूकोज में क्या हो रहा है कि डी ग्लूकोज में जो OH है वो आपको राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। उसी तरह से फोर्थ कार्बन का OH डी ग्लूकोज में राइट हैंड साइड को है, लेकिन गैलेक्टोज में वही OH फोर्थ कार्बन का कौन से साइड को है, लेफ्ट हैंड साइड को। तो एक सिंगल पोजीशन के पे डिफरेंस सिर्फ आपको नजर आएगा और इस चीज को हम बोलेंगे इपिमर्स। वैसे डी ग्लूकोज और मैनोज में क्या है कि सेकंड कार्बन पे आपका OH जो है वो राइट हैंड साइड में इन ग्लूकोज, लेकिन डी मैनोज में आपका वो लेफ्ट हैंड साइड में है। सो दैट विल बी विद द इपिमर। And thank you very much for watching this video. So please like it and subscribe it. Thank you again.